Hello everyone, now again welcome to video lecture class. Today I am going to talk about the remaining nature of physical science. In the earlier video I have also discussed the three nature of, that is 3 point related to the nature discuss. But आज जो वीडियो में आपको यानी आज जो टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ वह नेचर यानी जो भौतिक विज्ञान है उसकी प्रकृति के 3 और पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। आपके सिलेबस में इससे संबंधित मैं 10 पॉइंट शुरुआत में बताया हूँ, तो उन सभी को एक एक करके डिस्क्राइब करूँगा आगे भी। आज जो मैं 3 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, नंबर 1 दैट मीन्स साइंस एज ए इंटरडिसिप्लिनरी, सेकेंड वर्ड इज साइंस इज ए truly international enterprise and science as a tentative, अर्थात विज्ञान एक अंतः विषय के रूप में है, विज्ञान एक अंतर्राष्ट्रीय उद्यमी के रूप में भी काम करता है, और तीसरा विज्ञान अस्थायी है। यानी तात्पर्य स्पष्ट है कि फिजिकल साइंस दैट मीन्स नॉट ओनली a particular subject but their nature related to the interdisciplinary way. In fact is that science also related with other subjects, and also science that means we have to use, यानी हम लोग इसको अत्यधिक मात्रा में एक उद्यमिता के आधार पर भी यानी बिजनेस और व्यापार के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। साइंस को कोई भी उसके जो शोध हैं, उसके रिसर्च हैं, उसके अनुसार जानते हैं, बट उसको अस्थायी नहीं माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस वर्क, जो पूर्व के जो वर्क कार्य जो किए रहते हैं उसके आधार पर आगे की चीज़ें चलती रहती हैं, और फिर पुराने चीज़ों को अस्वीकृत करके नए रिवाइज करके नए थ्योरी, नए एप्लीकेशन, नए थॉट्स, नए आइडिया को छात्रों के पास या लोगों के पास प्रस्तुत किया जाता है एक नए अध्ययन के अनुसार। तात्पर्य है कि विज्ञान को लिमिट नहीं किया जा सकता है, विज्ञान को अस्थायी है, विज्ञान का आधार सदैव चलता रहता है। दैट मीन्स साइंस इट इज ए गोइंग ऑनगोइंग प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसको लिमिट नहीं किया जा सकता है। मैं अब आपको इसे और विस्तार से तीनों नेचर को बताने जा रहा हूँ। यह टॉपिक जो कि मैं अभी आपको बताया, यह द पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड टू B.Ed सेमेस्टर 2 मेथड पेपर फिजिकल साइंस पेपर नंबर 7। यह टॉपिक नेचर ऑफ साइंस B.Ed सेमेस्टर 2 के मेथड पेपर नंबर 7 के अंतर्गत ये चीज़ें हैं, और यह यूनिट 1 से जुड़ा हुआ है। Now again welcome to video lecture class B.Ed semester 2 paper 7 physical science. Now pedagogy of physical science unit 1 nature of science. In the earlier video I have also discussed, but today I am going to talk about point number 4, science is an interdisciplinary area of learning. Number 5, science is a truly international enterprise. Number 6, science is always tentative. Now number 4, science is an interdisciplinary area of learning. As you know that science flourished in ancient cultures like Indian, Chinese, Greek, Egyptian and others. In fact, the word science and the scientists are of comparatively recent origin. Natural philosophy of science generally related to the all natural phenomena, means related to the earth, and various events takes place in the earth. When the volume of knowledge became too large, scientists started specializing the specializing in certain areas. It is then that knowledge was
organized for convenience into discipline like physics, chemistry, biology, geology, astronomy, etc. Therefore, there are therefore there cannot be any rigid or any flexible work as the discipline of the science. Several scientific topics under more than one discipline, that is the fact of science. In fact, at the present time, the trend is towards studying more than one discipline or interdisciplinary subjects. For example, biotechnology, molecular biology, and biochemistry is the emerged and recent times where study of biology along with physics, mathematics, and chemistry. Thermodynamics is the perfect example of interdisciplinary nature of science. Another example, that is biomolecules, is the fact that is related to the living being but also studied in chemistry. Surface chemistry deals with phenomena that occur at the interface of surfaces related to the other subject also. Fact is that interdisciplinary area means science indicates that the area of knowledge and area of learning and also correlate with other subject. Now next one is science is a truly international enterprise. The another aspects of modern science that needs consideration, that is it is truly international enterprise. Men and women of all countries participate in the progress of science and its application. This is because the human and financial resources needed for most big projects are beyond the reach of any single country. Mapping of human genome project along with various medicines in the area of chemistry, also the experiment on this area, that is the perfect example of international enterprise. International collaboration in most of the project in the order of the day, that means is the order of the day. In this sense, science does not belong to any single country or a group of countries, and it would be morally and ethically wrong to deny the fruits of scientific development to any country in the world. Now, science is always tentative. All theories indicates that science, that means area or the particular facts related to the research, and always new evidences, new facts, and new observation related to the development of the science. Various theories, for example, theories of work of Copernicus, Kepler, Galileo, and so many scientists, that is work related to the universe, but in a certain period of time it should be changed day by day. Ultimately, of course, the weight of the particular work is day by day decreases and new work is also inserted or added. Work of Newton's theory also is the same examples, and day by day change in the law of nature. Means science is always
not a tentative way, but it is also changeable. अब मैं इन सभी चीज़ों को थोड़ा हिंदी में स्पष्ट कर दूं। विज्ञान की प्रकृति, इसके पूर्व के वीडियो में मैंने 3 इससे फैक्ट्स, इसके जो नेचर थे उसको मैंने विस्तार से बताया था। आज मैं 3 के बारे में बात कर रहा हूं। नंबर 4, विज्ञान सीखने का एक अंतर विषय क्षेत्र है। अगर इसके अंतर विषय क्षेत्र की बात करें तो विज्ञान के बारे में ये चीज़ें कही जाती हैं कि इसको लिमिट या किसी आधार पर नहीं रखा जा सकता है। विज्ञान एक ऐसा आधार है जिसकी एक अपनी विशेषताएं होती है, जैसे कि अपनी विशेष विषय वस्तु, किसी व्यवसाय या सामाजिक क्रिया से जुड़ा होना, उसके अध्ययन का अपना एक तरीका होता है उसका अनुसंधान का भी अपना एक विशिष्ट क्षेत्र होता है, मूल्यों का एक विशेष समूह होता है, संचालन का भी एक आधार होता है। परंतु साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि थर्मामीटर या बहुत सारे ऐसे वस्तुओं का प्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में या रसायन, भौतिक या चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि जब हम 2 या 2 से अधिक अनुशासन विषय की पारस्परिक क्रिया व प्रभाव देखते हैं तो इसे अंतर विषय या अंतर विषय विज्ञान का या उसका आधार या विषय का क्षेत्र मानते हैं। एक अनुशासन यानी एक विषय क्षेत्र द्वारा या उसका आधार वह ज्ञान होता है जो अन्य विषयों में जगह पाता है। इसका तात्पर्य यह है कि आज के युग में जब ज्ञान का विस्फोट हो रहा है तो हर विषय के विशेषज्ञ को मिलकर कई समस्याओं का समाधान करना होगा। और एक अभियंता उस कोर्स से जुड़े हुए इन तकनीक से संबंधित विषय ही पढ़ता है, वरन भौतिकी, रसायन या व्यावसायिक या उसके साथ जो है संबंधित या पर्यावरण विज्ञान या सामाजिक या व्यावसायिक तरह तरह की चीज़ों का अध्ययन करता है। साथ ही अब यह आधार भी है कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सभी विषयों को पढ़ा जा सकता है। रुचि के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार जैसे होता है, छात्र अपने इंटरेस्ट के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि विज्ञान एक इंटरडिसिप्लिनरी यानी अंतर विषय क्षेत्र के रूप में है। अब मैं अगर इसके थोड़ी सी बात और इसके बारे में अगर बताऊं तो प्राकृतिक दर्शन यानी जो कि नेचुरल चीज़ों को हम देखते हैं तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक, रसायन, खगोलीय या गणित या भूगर्भ विज्ञान, और अगर प्राकृतिक विज्ञान की बात करें तो आयुर्विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पाते हैं। तो कह सकते हैं कि अंतर विषय का आधार एकांकी नहीं बल्कि विज्ञान के हर शाखा एक दूसरे पर निर्भर है। और भाषा के प्रकरण में कुछ ऐसी चीज़ें गद्य या पद के अनुसार होती हैं जिसमें कि आविष्कारों या वैज्ञानिकों की जीवनी आदि से हो सकते हैं। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में हम देखते हैं मिलेगा कि समाज और सामाजिक संस्कृति या सामाजिक संगठन, अंधविश्वास इत्यादि को भी विज्ञान के साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है। इस प्रकार से ये स्पष्ट होती है कि विज्ञान सीखने का एक अंतर विषय क्षेत्र है। दूसरा नंबर 5 पॉइंट है, विज्ञान वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय उद्यम है, यानी एक व्यापार का एक आधार है। जैसे कि सामान्यतः इसमें ये चीज़ें हम बता सकते हैं कि विज्ञान के विस्तार ने हमारे जीवन में औद्योगिकरण, अंतर्राष्ट्रीयकरण और सार्वभौमिकता को प्रचलित कर दिया है। और इस औद्योगिकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण या सार्वभौमिकता के चलते हम तरह तरह के नए टेक्निक, नए नए चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसका आविष्कार, कंप्यूटर का, या कुछ सौंदर्य वस्तुएं या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मार्केट में उपलब्ध होती हैं और अंतर्राष्ट्रीयकरण के आधार पर एक बिजनेस को, व्यवसाय को करने में आर्थिक मदद भी मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान तकनीकी और उसकी कंपनियां अनुसंधान के सहयोग के साथ सरकार को उदारीकरण की नीति की ओर आगे बढ़ रही हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विदेशी तकनीक और उसकी कंपनियां हर क्षेत्र में सहयोग करें। विभिन्न प्रकार के ऐसे देश हैं जो कि विज्ञान यानी बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से संबंधित, फिजिक्स से संबंधित या केमिस्ट्री से संबंधित बहुत चीज़ों को जोड़कर आगे बढ़ रही हैं। और लास्ट में विज्ञान हमेशा अस्थायी है, यानी हमने पहले ही बताया कि कुछ ऐसे क्षेत्र जैसे कि न्यूटन्स का लॉ या केपलर्स का या कोपरनिकस का, ये चीज़ें स्पष्ट की हुई हैं कि इसको लिमिट में नहीं कर सकते हैं, हमेशा परिवर्तनशील होता है। एक थ्योरी को कुछ समय के लिए रखा जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद पुरानी चीज़ें बदल जाती हैं, नई चीज़ें उपस्थित हो जाती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विज्ञान हमेशा अस्थायी है। इस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट किया। अगले क्लास में और जो इसके रिमेनिंग 4 जो नेचर हैं उसके बारे में भी हम स्पष्ट करेंगे।